everyone. Greetings for the day. Very good evening. I'm Sayedka from All About Skin Wellbeing. And I'm sure all of you must be doing really good. We all know taking good care of our skin is important more than just the appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. But a fungal infection is quite common on our skin or nails or many times on our scalp. Fungal infections can be caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal infections can look like a rash. It can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Priyanka Sataria, live from Rajkot to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Priyanka Sataria is board certified dermatologist, laser and allergy consultant dermatologist, hair transplant surgeon, and she has an experience of 20 plus years. She is associated in various national and international dermatology societies, and she has been the president and vice president of Gujarat Derma Association. Apart from dermatological practices, she practices in lasers as well, and she is highly active uh, for public awareness. A very warm welcome to you, Dr. Priyanka Sataria. Thank you so much. Doctor, today we are going to talk about fungal infections, and we know that it's quite common. Surging, the cases are at the surge, especially during this season when it's raining in some parts, it's hot and humid. To start with, uh, what is fungal infection and why it happens, how it happens? So basically, fungus is something like you rightly said. It is seen more in the hot and humid climate. So summer and monsoon is favorite of fungus. So it is like when you keep some food, it gets stale and it has fungus over top of it. Same way you get fungal infections on various body parts. You can have fungal infection right from your head, from your hair to your face, to your nails, to your body parts, any body part. And it is of course related to more humidity, getting wet in the monsoon, the clothes are not properly dried, all that adds to the fungal infections. राइट डॉक्टर, वो कौन से बॉडी पार्ट्स है? ऐसे तो आपने कहा कि टॉप टू टो कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बट देन which are the body parts which are more at risk, or where fungus usually develops or grows? या ट्रू, द मोर प्रोन पार्ट्स जहाँ पे ज्यादा फंगस हो सकता है वो अगेन जो फ्रिक्शनल एरियाज होते हैं, राइट फ्रॉम द बिकिनी लाइन टू द आर्मपेट्स, the breast line for the ladies, that is commonly because it stays in a it has a humid environment. सेकेंड कॉमनेस्ट रहता है राइट स्कैल्प फंगस, जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो उसका एक वेरिएंट होता है स्कैल्प फंगस. सो इन monsoon you start feeling itchy here, especially in this area of the scalp. So scalp fungus is again very common. एंड थर्ड कॉमनेस्ट कम्स द नेल्स फंगस, जो लोग बहुत ज्यादा पानी में हाथ डालते हैं या बहुत ज्यादा वॉशिंग या डिटर्जेंट यूज रहता है, फुट एंड नेल फंगस, दैट इज द थर्ड कॉमनेस्ट. हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर प्रियंका, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. फंगल इन्फेक्शन के लिए भी क्या ये कहा जा सकता है, आर देयर एनी प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वी कैन टेक? Absolutely. So, wearing loose cotton clothes, of course, fresh clothes, taking bath twice a day with a mild soap, trying to keep your folds very clean, moisturize your folds. अभी बेसिकली ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाता है, डैम्प और मॉइस्चराइजर में दोनों में फर्क होता है. तो जैसे हमने बाथ लेने के बाद जो एरिया को मॉइस्चराइज कर दिया तो एक बैरियर रिपेयर हो जाता है, तो ये हाइड्रेटेड रहता है, बैरियर रिपेयर अच्छा रहता है, तो फंगल इन्फेक्शन कम पकड़ता है. एंड डोंट मिक्स एंड मैच क्लोथ्स, मतलब एक दूसरे का क्लोथ्स मत पहनिए, स्पेशली बच्चे जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं. ट्राई टू कीप योर अंडरगारमेंट्स, योर इनरवेयर वेरी ड्राई. जैसे अगर मानसून है तो उसको आयरन करके पहनिए. एंड फॉर नेल्स, अवॉइड द सैलून प्रोसीजर्स to avoid fungal infections. Don't use the nail clippers or nail cutters with each other, and don't wear very tight shoes. Just keep everything as dry and as possible. बिल्कुल, तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखें, मॉइस्चर या स्वेट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट ना होने दें, क्योंकि ये इस मौसम में होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बहुत स्वेटिंग होती है, और ऐसे में वो जब बहुत ज़्यादा देर तक एक्यूमुलेट रहेगा तो फंगस को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. डॉक्टर, वेरी कॉमन सिनेरियो दैट वी सी
ऑफन इन आवर सोसाइटी इज कि अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए एज अ लेमन मुझे नहीं पता या नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुझे हुआ है वो फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है, मैं नॉर्मली या तो कुछ ट्राई करूंगी, स्किन पे लगा लो, होम रेमेडीज से हम ऐसे भी बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं, या आजकल इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और स्किन एक बहुत कॉमन टॉपिक है उनके लिए बात करने का, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर बोथ सर्टिफाइड और क्वालिफाइड डर्मैट्स। तो वो कुछ ना कुछ DIYs बताते हैं, ये लगा लो वो लगा लो इससे ठीक हो जाएगा, एंड वी फॉल फॉर इट। देन द इजीएस्ट वे फॉर अस इज टू गो टू अ केमिस्ट शॉप कि भैया देखो कुछ हो रहा है, इचिंग हो रही है, कुछ दे दो। तो वो जो टॉपिकल एप्लीकेशन देते हैं उसे हम महीनों महीनों लगाते हैं, और फिर जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक काफी वक्त हो चुका होता है। तो ऐसे में ये जो DIYs, होम रेमेडीज, ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन जो हम करते हैं, ये सब इफेक्टिव होता भी है फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में, या उसको और खराब करता है? थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मैं अपना कोई भी टॉक लेती हूँ उसमें मैं हमेशा एक चीज ऐड करती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड टू बी इन इंडिया। योर डॉक्टर इज अ वन कॉल अवे। तो राइट। सिर्फ एक कंसल्टेशन अवॉइड करके आप अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहे हैं। वन, आप रॉन्ग मेडिकेशन कर रहे हैं। केमिस्ट इज सपोज टू डिस्पेंस द मेडिसिन, नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, या योर फ्रेंड्स राइट। एंड ऑल दैट। और फंगल इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी फॉर दैट पर्पस, एक्ने है, कुछ भी है, सो व्हेन योर डर्मैट और योर डॉक्टर इज वन कॉल अवे, सो व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट। एंड लाइक यू राइटली सेड, जैसे रेगुलर फंगल इन्फेक्शन जो फर्स्ट गो में आ जाते हैं हम लोगों के पास, तो वो 6 वीक्स के कोर्स होता है जिसमें वो कंप्लीट हो जाता है। जो लेट आते हैं उसको हम इनकॉग्निटो बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंट फंगस। तो जो चीज आपको 6 से 8 वीक में खत्म हो जाने वाली थी, उसके लिए तो आप डबल डोज या हायर मेडिसिन खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, लंबी खाएंगे, सो एंड अप हैविंग मोर मेडिकेशन एंड पेइंग मोर। So it was always better to consult your dermat first. So you waste your time, your energy, your money, and most importantly, your health. Or when you go for all these experiments, don't do that. Don't go for it. Go to the correct person, which is a board certified or qualified dermatologist. यही सही डॉक्टर है जो आपका सही इलाज करेंगे। एक और प्रॉब्लम डॉक्टर, एक तो आपने कहा कि जो लोग बाद में आते हैं या बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद आते हैं तो उनका ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। एक और जो प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन के साथ आजकल देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा, वो है रिकरेंस, बार बार होता है। ये भी बहुत बढ़ गया है। इसका कोई खास वजह क्यों बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है एक ही व्यक्ति को? 3 थिंग्स, लाइक इंडियंस को बहुत बेसिक बैड हैबिट है कि थोड़ा सा इंप्रूव हुआ दवाई बीच में छोड़ देंगे। लाइक आई सेड, इन स्किन डिजीजेस द डोजेस आर माइल्ड बट इट इज फॉर लॉन्गर टाइम। तो जैसे अगर 6 to 8 वीक्स डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 फॉलोअप्स करने हैं, तो आपको कंप्लीट करना है। आपने बीच में कोर्स छोड़ा, ऊपर से फंगस दिखना बंद हो गया, बट द फंगस इज स्टिल इन द डीपर डर्मल लेयर्स, वो वापस उग जाएगा। सो अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर वन, तो आपको वापस वो मेडिसिन लेना पड़ेगा। सेकेंड, आधी दवाई बीच में छोड़ दी तो उसका आधा जो ट्रीटमेंट है उससे वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो अगली बार हमें दवाई चेंज करनी पड़ेगी और अगेन लंबे समय के लिए देनी पड़ेगी। दैट इज रिलैप्स और रिकरेंस। एंड थर्ड, इवन मिड जाने के बाद भी, बिकॉज योर बॉडी इज लिटिल प्रोन टू फंगल इन्फेक्शंस, आपको जो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मैंने बताया कॉटन क्लॉथ्स, प्रॉपर हाइजीन एंड ऑल दैट, वो आपको 5-6 मंथ्स मेंटेन करना ही पड़ता है, अदरवाइज इट टेंड्स टू कम बैक। इट इज लाइक कोल्ड एंड कफ, you get a cold and cough, and then once you get well and you start eating ice creams every day, you're bound to get it back again, it's something like that. राइट। जब परेशानी होती है तब तो हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब उसका इलाज मिल जाता है तो हमें लगता है 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा कि हम कुछ दिन फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन जब हमें लगता है कि अरे ये तो ठीक हो रहा है, अब दिख नहीं रहे लीजन, अब उतनी इचिंग नहीं हो रही है, तो हमें लगता है बस ठीक हो गया, अब दवाई खाने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा कर करके हम सब ने, हमारी पूरी सोसाइटी ने ये जो रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शंस हैं, या दवाइयों का ना असर करना है, या ज्यादा तगड़ी दवाइयों का, जिसे हम बहुत आम भाषा में कहते हैं ना, यूज होना, या अब ड्यूरेशन बढ़ जाना ट्रीटमेंट का, ये सब हुआ है हमारी इसी प्रैक्टिस की वजह से, इल प्रैक्टिस की वजह से। तो ये हमें नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है। और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले तो एक डॉक्टर के पास जाना है, डर्मेट के पास जाना है। दूसरा, उस जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन है उसे पूरा कंप्लीट करना है, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर, हम लगातार फंगल इन्फेक्शन पर बात कर रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में फंगल इन्फेक्शन अगर है
उस पर भी हम बात करना चाहेंगे. डेफिनेटली उनके लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन इज अ बिग नो नो, वी ऑल नो. तो फिर अगर उनको फंगल इन्फेक्शन है तो किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए? One thing I forgot to add in the last statement, which I'll Sure. add just now. There are some over-the-counter creams available, which is sold by the chemist, जिसमें पीछे GM लिखा होता है, you know, G for Gujarat, M for Mumbai, GM. So those are steroid combinations. So initially जब आप लगाओगे आपको लगेगा वाओ ये 5 दिन में 5-6 days में मिट गया, and then it comes back again. So using a steroid cream is a total no-no for a fungal infection. That is a big one of the biggest causes of relapse and recurrence. Now coming to your question for pregnant females, see for sure even the gynac send them to the dermats. तो हर trimester के हिसाब से medicines वो dermatologist decide करते हैं. There are some medicines which can be very safely given to the pregnant women, and topicals और उस medicine के combination से हम लोग उनको treat करते हैं. So again don't do trials, you just get it treated by your dermatologist. लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी डॉक्टर यही होता है, और खास तौर पे अगर लैक्टेशन के दौरान उनके निपल्स में, या आपने कहा कि अंडरनीथ द ब्रेस्ट भी एक बहुत ही वल्नरेबल एरिया जहाँ पे फंगस ग्रो करता है, वहां पे अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनको क्या सावधानी बरतनी है? Again जो set of कुछ medicines है which are approved for the breastfeeding women, so we give them the medicine, and generally उन सब लोगों को हम लोग 2-3 तरह के suggestions देते हैं कि जैसे कोई भी you know मलमल का cloth या tissue paper, you make a hole in it, just keep the nipple outside and you cover the rest of the area. So it is a short contact, maybe 10 to 15 minutes to the baby, so you can just put a barrier, cloth barrier, and you can do the feeding, because वो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं जाने वाला है, तो सिर्फ स्किन कांटेक्ट को ही अपने को ध्यान रखना है. तो नो नीड ऑफ स्टॉपिंग द ब्रेस्ट मिल्क. राइट. अच्छा, आमतौर पे अगर फंगल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस की हम बात करें, उससे पहले एज अ लेमन हम क्या समझ सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हमें हुआ है वो फंगल इन्फेक्शन है, कुछ और नहीं है? कई बार क्या है, हमको तो यही लगता है कि रैश है, इचिंग है, तो या तो एलर्जी होगी या कोई इन्फेक्शन होगा. एज अ लेमन यही समझ में आता है. तो फंगल इन्फेक्शन हुआ है, इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्टर? फॉर अ रेगुलर ले पर्सन, इनिशियली आपको छोटा सा बम्प जैसा ही लगेगा, विच बिकम्स अ रिंग, इसीलिए उसको रिंग वर्म बोलते हैं. ऐसे सर्कल जैसा बन जाता है, तो इट्स सेंटर में क्लियर हो जाता है और उसके बॉर्डर्स में वो बढ़ता है, एंड इट इज वेरी वेरी इची. It is more itchy, especially when you after bath, while changing clothes. उस टाइम पे आपको इचीनेस बहुत ज्यादा होता है, लेट नाइट में इवनिंग्स में इची बहुत ज्यादा होता है और बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है. मतलब जैसे किसी को एक्जिमा, जनरली कंफ्यूजन एक्जिमा से होता है, तो एक्जिमा ऐसे रातों रात नहीं बढ़ जाता है. फंगल इन्फेक्शन 1 week to 10 to 15 days it just spreads and it is very red. और जो मैंने आपको बॉर्डर बताया ना, उस पे हल्के से छोटे छोटे से पिंपल तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत छोटे छोटे से फुंसिया जैसे हो जाती है. सो इट जस्ट स्प्रेड्स एंड इट इज वेरी वेरी इची. सो दैट इज हाउ यू कम टू नो. ओके. अच्छा, फंगल इन्फेक्शन क्या एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में भी फैल सकता है एक ही व्यक्ति के? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज वो इन्फेक्शन है. जैसे किसी को फेस पे उसने स्क्रैच, अपना खुद का वो कपड़े भी यूज कर रहे हैं, टाल यूज कर रहे हैं, और उसको स्क्रैच करके उन्होंने जहाँ टच किया वहां वो स्प्रेड हो ही सकता है फॉर श्योर. एंड इट कैन इवन स्प्रेड फ्रॉम सपोज कोई भी, जो दो लोग बेड शेयर कर रहे हैं, सो इवन इट कैन स्प्रेड थ्रू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. आप किसी का टाल यूज कर रहे हो, आप बेडशीट्स यूज कर रहे हो, तो वो ऐसे भी हम क्लोथ्स ट्राई करते हैं. कभी 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 आपने देखा होगा मेरे घर में किसी को नहीं है तो मुझे खांसी आया, तो शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स इवन व्हेन वी आर डूइंग द ट्रायल्स एट द से मॉल, तो वो इतना इन्फेक्शन होता है और ऐसे भी ट्रांसफर हो जाता है. अगर मान लीजिए फैमिली में किसी एक को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो दूसरों को वो ना स्प्रेड हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है डॉक्टर? ग्रेट क्वेश्चन. तो उसमें जिस पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है उसके क्लोथ्स अलग से वॉश किए जाएंगे, मशीन में भी अलग से वॉश किए जाएंगे. वन, तो जनरली सबका अलग होता है. क्लोथ्स कोई उनके शेयर नहीं किए जाएंगे. उनके जो अंडरगारमेंट्स है वो अलग डेटॉल वॉश टाइप ऑफ वॉश होंगे. टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने, जीन्स वगैरह. एंड इवन जो सोप है,
जो हम्म, जिसको फंगल इन्फेक्शन, उसकी सोप भी कोई दूसरा यूज नहीं करेगा. सो एज मच हाइजीन, एंड ऑफ कोर्स अलग सोएंगे तो बहुत बेटर रहेगा. बिल्कुल, तो हाइजीन मेंटेन करना है एट एवरी लेवल, और अगर कोई एक इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली बहुत सतर्कता बरतनी है ताकि वो दूसरों में ना फैले, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिससे हुआ है वो ट्रीटमेंट ले और पूरा ट्रीटमेंट करे, वरना बार बार वो जो एक विशियस सर्कल जैसा बन जाता है कि एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ. और प्लीज दवाइयां भी शेयर ना कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ 2 महीने पहले आपकी फैमिली में किसी और को हुआ था. ये भी बहुत कॉमन है डॉक्टर, हमारे हमारे फ्रेंड्स फैमिली जो है इसमें भी अपना प्रिस्क्रिप्शन ले आते हैं कि अरे मैं तो डॉक्टर के पास गई थी ना, तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन, मेरा मतलब सेल्फ मेडिकेशन ये डॉक्टर ने दिया है. तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फंगल का जो डोज रहेगा, सी द एंटी फंगल्स, उसका डोज होता है पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, और उसके अलग हम्म, अलग 5 to 6 वेरिएंट ऑफ मेडिसिन होते हैं. तो वो आपको कितना इन्फेक्शन, आपका बॉडी वेट कैसा है, आपको कहाँ हुआ है, नेल फंगस की दवाई अलग हो जाएगी, बॉडी फंगस की अलग हो जाएगी, स्कैल्प की अलग हो जाएगी. सो वी डोंट वांट टू, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, किसी को डायबिटीज है, किसी को नहीं, हम्म, ऑल दोस थिंग्स, इट्स अ मेडिसिन. मतलब हम लोग तो इवन हम्म, फेस वॉशेस एंड वो भी बोलते हैं कि डोंट प्रिस्क्राइब टू ईच अदर, बट ये तो प्रॉपर मेडिसिन है, सो यू शुड नेवर डू दैट. हाँ, बिल्कुल. डॉक्टर, क्योंकि आपने डायबिटीज का जिक्र किया, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, उनमें क्या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? या जिस भी पर्सन में इम्यूनिटी पुअर है, बॉडी रिपेयर अफेक्टेड है, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, बेड रिडन पेशेंट्स है, डायबिटिक्स है, थोड़ा बहुत थायराइड हाई लेवल पे है, इमीडिएटली कोई भी ऑपरेटेड पेशेंट है, तो वो हाइजीन और उनका बैरियर रिपेयर पुअर हो जाता है, इसलिए उनको फंगल इन्फेक्शन लगने के चांस ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाते हैं, बट यू कैन ऑलवेज गेट ट्रीटेड. Yes, I think the bottom line is that in case first do the preventive measures, वो तो हम सबको करना है. फिर भी अगर हो जाता है तो हमें एक डर्मैट के पास जाना है और इलाज पूरा करना है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. अब फंगल इन्फेक्शन पर हम बात करें लगातार, स्किन रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन पर थोड़ी बात हम नेल फंगल इन्फेक्शन पर भी करना चाहते हैं. डॉक्टर, कैसा दिखता है जब नेल में फंगल इन्फेक्शन हो? हमें कैसे पता चले कि अच्छा हमारे नेल में फंगल इन्फेक्शन हुआ है? इनिशियली जो नेल का ऊपर से स्टार्ट होता है, जनरली द टॉप पार्ट, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग लिटिल व्हाइटिश और ग्रीनिश टिंज. कुछ लोगों को यहाँ पे क्यूटिकल्स में साइड में बर्निंग या पेन या स्वेलिंग भी हो सकता है. एंड जब जैसे 5-6 महीने हो जाते हैं तो आपको जो नेल बेड और जो नेल बेस है वो ऐसे स्प्लिट हो जाता है, मतलब उसमें गैप हो जाता है. जनरली आप देखो हम्म. टेक्निकली सी व्हाइट काइंड ऑफ अ थिंग, और इन्फेक्टेड ज्यादा होगा तो वो ग्रीन या ब्राउन भी हो जाता है. सो द नेल बेड स्टार्ट सेपरेटिंग. ओके. नेल फंगल इन्फेक्शन होने का डॉक्टर किन को खतरा ज्यादा होता है? Wearing long hours of shoes which are not very permeable, मतलब स्पोर्ट शूज, लेदर शूज काइंड ऑफ अ थिंग, या हम्म, जो पानी में कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे मेड्स हैं, या कुछ कुछ लेडीज को बहुत ज्यादा पूरा दिन पानी में हाथ या पैर धोते रहते हैं, सो ओवर डैम्पिंग, तो उससे वो बैरियर रिपेयर खराब हो जाता है, उससे वो फंगल इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं उन लोगों को. एंड ऑफ कोर्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड डायबिटिक्स. राइट. और जैसे कोई मैनिक्योर पेडिक्योर लेने जब हम सैलून में जाते हैं, पार्लर्स में जाते हैं, उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार उनके इक्विपमेंट्स को लेकर भी हमें रहता है कि ये उतने ठीक है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है. सी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट यस, आई एम नॉट वेरी श्योर कि सैनिटाइजिंग लेवल कितना रहता है पेडिक्योर मैनिक्योर का. तो बिकॉज वो तो पूरा अंदर ही जा रहा है, क्यूटिकल्स कट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं. इफ यू आर वेरी श्योर दैट द पर्टिकुलर salon is sanitizing or autoclaving the particular instruments, great. बट या बिकॉज वो तो लिटरली अंदर पेनिट्रेट ही कर रहे हैं, और रॉन्ग कटिंग ऑफ द क्यूटिकल्स, कभी डीप क्यूटिकल्स कट हो जाए या बहुत ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज हो जाए, सो इट ऑल induces the fungal infection. Understand one thing, जो ये फंगस होता है वो नेचुरली एनवायरमेंट में रहता ही है, अपना इंडियन काइंड ऑफ अ सेटअप में. तो आपको कैसे बचना है, आप हाइजीन और वो सब कैसे मेंटेन करेंगे, वो इट विल हेल्प यू मोर रादर देन ऑफ कोर्स गेटिंग ट्रीटेड विद द डॉक्टर, बट प्रिवेंशन इज बेटर in this particular disease.
बिल्कुल, और इस मौसम में तो हमें इतना फंगल इन्फेक्शन देखने को, मतलब इंसानों पर तो दिखता ही है, उसके अलावा भी दीवारें डैम्प हो रही है, वहां फंगस दिखता है। कई लोगों की छत पे काई होती है। फंगस बहुत इजीली डेवलप करता है। ब्रेड इतना कॉमन एग्जाम्पल है, घर में हम सबने कभी ना कभी ब्रेड पे फंगस ग्रो होते देखा है। तो इट्स दैट इजी टू ग्रो। जैसे उसको एनवायरनमेंट मिलता है वो रहता ही है, एनवायरनमेंट में ग्रो होता है, और बहुत पोटेंट भी होते हैं फंगल इन्फेक्शन कई बार, तो इसलिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ये जो नेल फंगल इन्फेक्शन है डॉक्टर, इसका किस तरह से इलाज होता है, कितना वक्त लगभग लगता है? एनी नेल फंगल इन्फेक्शन कम हो या ज्यादा हो, वी से मिनिमम 6 to 9 months, और किसी का बहुत ज्यादा है देन 12 months, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द नेल इज इम्प्रूविंग। और कभी कभी बहुत खराब होता है, बहुत मेडिसिन नहीं दें, क्योंकि 10 to 12 months ऑफ मेडिसिन इज अ लॉन्ग पीरियड, बट उसमें हम लो डोज देते हैं, हम वीकली डोजिंग देते हैं, नेल लैकर्स आते हैं। एंड नाउ विद द टेक्नोलॉजी वी हैव लेजर्स। आई हैव हैड पेशेंट जो, जिनको मुझे, जो आउट ऑफ कंट्री थे या जिनको हम नहीं दे पा रहे थे, तो वी क्लियर्ड इट विद लेजर मच मोर फास्टर। क्यू स्विच लेजर, फ्रैक्शन CO2 लेजर्स करके लेजर्स आते हैं, जिससे हम उसको स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस को। बट या 6 to 9 months इज अ गुड टाइम विच इज नीडेड। क्योंकि आपने एक प्रोसीजर का जिक्र किया, लेजर का जिक्र किया डॉक्टर, इसलिए मैं ये सवाल यहाँ पूछ रही हूँ। कई बार क्या होता है, अगेन हमारी सोसाइटी में ये बहुत, एक तो क्वैकरी बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है। देन वी हैव सलून्स हु डू लेजर्स, हु क्लेम टू डू लेजर्स, और क्लिनिक्स वेयर अ क्वालिफाइड डॉक्टर इज नॉट देयर, a dermat is not there, but they claim कि हम जो है लेजर्स करते हैं। तो ये सब चल रहा है simultaneously. Then we have good proper board certified dermats जिनके clinics होते हैं, and people fall for it. कई बार सलून में बोल देते हैं अरे हम कर देंगे, it will be much cheaper, बहुत सस्ते में हो जाएगा, या इस तरह की चीजें भी आती है। Why it is important again to go to a क्वालिफाइड डर्मैट, या उन वो जहां कर रहे होंगे जिस क्लिनिक्स में इस तरह के प्रोसीजर्स, क्या ये देखना भी जरूरी होता है? थैंक यू फॉर रेजिंग दैट क्वेश्चन। सी, हम लोग सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं, लेजर इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंड दैट। फिर वो नेल का है या हम हेयर रिमूवल कर रहे हैं या हम एक्ने कर रहे हैं, सिर्फ लेजर से आप ट्रीट नहीं हो रहे हैं, वन। और राइट। अगर कोई डर्मेट आपको सजेस्ट कर रहा है, तो वो आपका पूरा मेडिकल पार्ट भी देख रहे हैं। मैं, कोई पेशेंट है, हम सिर्फ उसको लेजर्स नहीं करते हैं, अगर हेयर है या कुछ है तो हम उसका पूरा हार्मोन प्रोफाइल कराएंगे या वॉट एवर, हम मेडिसिन देंगे। सो वन, first, it is part of the treatment. Okay, so it is one step of the treatment. Second, अगर कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है, and with the qualification, with the type of machines, lasers is like phone, you can have a very basic phone and you can have iPhone 14, that kind of a thing. So the taking the judgment of the settings, which brand of lasers, how you are doing it. Of course, most doctors, the therapist do the laser, but the doctor tells the settings. जनरली बहुत पेशेंट, जैसे आपने राइट। बोला, हमारे साथ भी आर्ग्यू करते हैं कि आपके चार्जेस क्यों हायर है। वन, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लेजर। सेकंड, द राइट। एक्सपर्टीज, द सेटिंग, सो वी आर चार्जिंग फॉर दैट। एंड कुछ भी, इफ गॉड फॉरबिड एनीथिंग गोज रॉन्ग, सो you are राइट। in a safe hand to correct the negative factor also. So that is why you should not do any treatment which is supposed to be done by a trained doctor. राइट। जैसे कोई और बीमारी होती है, मान लीजिए हार्ट की कोई सर्जरी है, किडनी की कोई सर्जरी है, लिवर की कोई सर्जरी है, स्टोन का ही सोच लीजिए, तो उसमें भी हम प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते, वी वोंट गो टू एनी क्वैक कि भाई मेरा हार्ट के वॉल्व्स या स्टेंट लगा दो, वी डोंट डू दैट। बट विद स्किन आई गेस हम थोड़े लीनियंट हो जाते हैं। डोंट बी लीनियंट, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड यू, और स्किन पर कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो हमेशा दाग भी छोड़ जाती है और आपको तकलीफ भी देती है। तो क्यों करना, जब बहुत आसान तरीका है, और वो ये है कि जैसे ही कुछ भी दिक्कत लगे स्किन पे, अच्छे से क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए, इलाज लीजिए और इलाज पूरा कीजिए। ये बहुत जरूरी है। Thank you so much. हम लगातार बात कर रहे हैं फंगल। Yes, doctor. It's a very common thing. मतलब we as laymen also face these type of things. और of course, मतलब वही जो आपने बहुत अच्छी बात बताई ना, कि just in case, God forbid, but अगर कुछ गलत हो गया, तो एटलीस्ट एज अ डॉक्टर यू नो कि वो गलत को सही कैसे करना है, चीजों को संभालना कैसे, दूसरी जगह वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने नेल फंगल इन्फेक्शन पर बात किया डॉक्टर। नाउ वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन। आपने कहा डैंड्रफ भी कई बार फंगस की वजह से होता है। वी वुड लाइक यू टू
shed some more light over that scalp related fungal infection. राइट। सो डैंड्रफ एक इंग्लिश टर्म है, तो उसमें अलग अलग फंगल, जैसे जैसे उसमें सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, स्कैल्प सोरियासिस होता है, टीनिया होता है, वो अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं। आपको एज अ पर्सन वो डैंड्रफ ही लगेगा। सो इफ डोंट ट्राई एनी होम रेमेडीज और सम एनीथिंग मोर देन 1 मंथ और 3 to 4 वीक्स, बिकॉज अगेन वो बहुत स्प्रेड होगा। और उसके साइड इफेक्ट्स में तो इचिंग के साथ साथ यू स्टार्ट गेटिंग बॉयल्स, you start getting hair fall, bad hair fall, which creates more problem for you. So if you are facing any kind of dandruff which is more flaky, then it is most probably a fungal infection. So you'll have to take medications and some fungal, खाली शैम्पू से नहीं होगा। एंड अगेन फॉर एनी स्काल्प इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद भी कम से कम 2 to 3 months तक ऑयलिंग नहीं करना होता है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस प्रिस्क्राइब्ड शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months, बिकॉज वो वापस आ जाएगा नहीं तो। स्कैल्प इज अ रेजर्वोयर, स्पेशली वुमेन, क्योंकि यहाँ पे बाल बंधे रहते हैं, सो यू एंड दे डोंट वॉश एवरी डे, सो तो इट्स अ वेरी इट टेंड्स टू कम बैक द फंगल इन्फेक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया डॉक्टर कि ऑयलिंग नहीं करना है, लेकिन वी एज इंडियंस वी लव ऑयलिंग एंड वी फील दिस इज द ओनली सोल्यूशन वी हैव। सर पे इचिंग हो रही है, वो किसी भी वजह से हो रही हो, हम तेल लगाते हैं, डैंड्रफ जैसा कुछ भी दिख रहा हो हम तेल लगाते हैं, हम उसको घंटों घंटों रखते हैं, ऐसा नहीं कि लगाए और आधे घंटे में धो दिया। और कई लोग तो इस पे शायद लड़ भी जाए, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं नहीं तेल लगा के घर से भी निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट देन यू सेड विद फंगस ऑफ कोर्स वी नो कि तेल मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा या स्वेट और ये सब एक्यूमुलेट होगा तो फंगस को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। वी वुड लाइक यू टू टेल अस मोर अबाउट इट। See, and one thing first I'll come to oiling. आप कोई भी टीवी में ऐड देखो, आप किसी भी इवन सलोन वाले को या किसी को, वो लोग हमेशा बोलेंगे हाफ एन आवर चम्पी, दैट्स इट। तो आप ऑयल लगा के 5 to 6 मिनट मसाज करके उसको आपको वॉश ही करना है। जैसा हमारा पल्यूटेड और थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट है इंडिया का, we never suggest to keep oil more than half an hour to 1 hour on your scalp for anyone. और ऑयल इज फॉर लुब्रिकेशन, ऑयल अंदर नहीं उतरता है। आई बीन टेलिंग दैट अगेन एंड अगेन इन माय लॉट ऑफ टॉक्स। तो इट इज फॉर मॉइस्चराइजिंग योर क्यूटिकल्स एंड ऑल दैट। सेरम एक ही प्रोडक्ट होता है जो स्कैल्प में अंदर उतरता है, विच मेक्स योर हेयर स्ट्रेंथन एंड हेल्दियर। अभी आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको फंगस है या कुछ भी इंफेक्शन है और आप उसको घिस रहे हो, और जो भी डर्ट है या फंगस, आप उसको और यू आर ट्राइंग टू मसाज एंड स्प्रेड इट। जैसे डैंड्रफ है, जो रूसी होता है वो बहुत ड्राई, बहुत ठंडी जगहों पे होता है, वो -डिग्रीज में, वो वाला अपना कितना एरिया है, तो वो मॉइस्चर इससे इंप्रूव होगा ऑयलिंग से। बट कोई भी डैंड्रफ इन्फेक्शन वो सब बढ़ेगा। सो इफ यू हैव फ्लेक्स और एनीथिंग, डोंट पुट ऑयल, डोंट मसाज। उल्टा उसको, आपने जैसे बोला, वो उसको मीडियम दे रहा है, वो उसे मिठाई खिला रहा हो फंगस को, इन शॉर्ट। तो वो उससे बढ़ेगा, टेम्पररी लगेगा, वो इंप्रूव होगा, देन नेक्स्ट डे योर होल स्कैल्प इज फुल ऑफ इन्फेक्शन। सो अवॉइड डूइंग दैट। अगर आपको स्टिल बहुत ड्राइनेस हो रहा है, यू कैन यूज लिटिल बिट ऑफ सम एलोवेरा जेल और कर्ड। इफ यू आर कंफ्यूज और आपको मॉइस्चराइज करना ही है, सो यू कैन एटलीस्ट यूज दैट, इट इज लेस ग्रीजियर एज अ होम रेमेडी। And keep your scalp clean, keep it hygienic. Wash every second or third day. Wash for men or every alternate day, washing is the best thing what you can offer to your scalp. राइट। तो स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन की डॉक्टर हम बात कर रहे हैं, इसका किस तरह का ट्रीटमेंट होता है और बच्चों में क्या यह ज्यादा होता है? अगेन वन मेडिकेशंस, टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं लिक्विड फॉर्म्स में, जो हम लोग लगा सकते हैं 1 hour और ओवरनाइट, एंड देन इट इज टू बी वॉश, एंड सम स्पेसिफिक ईचिंग एंटी इच शैम्पूज, सो एंड द एंटी एलर्जिक्स वन। बच्चों में इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि वो स्कूल में ऑयल कंपलसरी होता है, एंड कभी कभी मैंने देखा लोग हफ्ते हफ्ते तक स्कैल्प नहीं धोते हैं। द मोर, एंड बच्चों को स्वेटिंग ज्यादा होता है, दे कीप ऑन टचिंग, दे विल हैव फूड, दे विल कीप ऑन टचिंग, तो हाइजीन लेवल कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। So anyone, again try to wash, but लड़कियों के अगर थोड़े बाल लंबे हैं तो every second और third day, but boys के daily oil light use करिए, don't use castor oil, almond oil, and keep it बच्चों for lot जो light oil, coconut light oil, तिल का light oil, बिकॉज कंपलसरी होता है, तो वो यूज करिए, पर वॉश फ्रीक्वेंटली करिए, टाल्स वॉश करिए, कोम्ब वॉश करिए, हफ्ते में 2 बार आप कोम्ब को वॉश करिए, तो उतना आप हाइजीन मेंटेन करिए।
कैप्स वगैरह नहीं पहनी है, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है जो कंटिन्यूस कैप पहन के रखते हैं, तो उससे भी वो हुक अप हो जाता है स्कैल्प. सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू मैनेज. कितना टाइम लगता है नॉर्मली ठीक होने में स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन डॉक्टर? सेम 6 to 12 weeks, 6 to 8 weeks. मतलब आपको जो प्रॉब्लम है ईचीनेस, वो सब तो आपको 2 to 3 weeks में चले जाता है, बट यू शुड कंप्लीट योर कोर्स फॉर 6, एनी फंगल 6 to 8 weeks मिनिमम. सिर्फ नेल में ही इतने मंथ्स लगते हैं. राइट, वी आर गेटिंग मेनी क्वेश्चंस. राहुल गोहिल का एक सवाल है, इज इट सेफ टू टेक एंटी फंगल मेडिसिन फॉर दिस लॉन्ग? Oh, that is the doctor's call, no? See, anti जो fungus, let the doctor take the veto. इसलिए हम So बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, केमिस्ट के पास नहीं, क्योंकि केमिस्ट का काम है प्रेस्क्रिप्शन देख के डॉक्टर दवाई देना है. डॉक्टर आपको बताएंगे कितना लेना है, कब तक लेना है. राइट डॉक्टर? मैं जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई फील कि इन पर्टिकुलर पर्सन को मुझे 3 महीने मेडिसिन खिलाना है, सो आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि उसका एक बेसिक हीमोग्लोबिन और लिवर एंड किडनी प्रोफाइल वो सब हम करके ही मेडिसिन देते हैं. सो यू नो वी आर वेरी वेरी सेफ. बट पर से फंगल की जो मेडिसिन होती है ना, वो बहुत लाइट होती है. इट इज नॉट लाइक एंटीबायोटिक्स. जैसे आपने को सर्दी खांसी, आपने एंटीबायोटिक खाया तो समटाइम्स यू गेट डायरिया, समटाइम्स यू गेट यू नो टेस्ट चेंज होता है. वो सब फंगल मेडिसिन आर वेरी लाइट बिकॉज दे आर सपोज टू बी टेकन फॉर लॉन्ग. So it can be given to bedridden patients, diabetics, any kind of patients, depending upon the body weight dose. So safety wise, no issues. If we are giving it in kids, we are giving it in pregnant, so no issues. बस जरूरत ये है कि आप वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करो. नहीं करोगे तो बार बार फंगल इन्फेक्शन होगा, बार बार दवाई खानी पड़ेगी. अभी वो जीरो से चालू करेंगे. Right. Okay. Tina Bhargav is asking, can public swimming pool cause fungal infection? Again, a controversial question. Any swimming pool for that per se can cause fungal infection if someone who is having fungal infection is taking bath very near to you. So two things. One, you don't go to the any kind of pool, but better option, आप pool में से बाहर आके immediately take bath with a normal, not a very harsh soap. Take a, or you can use a something like a neem soap and just dry your folds and just you can use some powder, antifungal powder, if you are feeling कि बहुत ज़्यादा लोग थे and you don't know what is the hygiene status. So you Right. can do that. डॉक्टर, इनिशियली आपने बताया ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन काफी होता है, कॉमन है, बट देन देयर आर पीपल हु डोंट कम अप एंड टॉक अबाउट इट, हु डोंट गो टू डॉक्टर एंड दे ट्राई, दे कीप ऑन सफरिंग इन साइलेंस, कुछ अपना करते हैं ताकि उतनी खुजली ना हो, इचिंग ना हो, बट काफी देर बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं. What's your take on that? Why it's important to go and speak to a doctor or dermat in case you have fungal infection in groin area? ट्रू. सो बेसिकली वो जो एक हेजिटेशन होता है वो उस वजह से कि हमें कैसे हो गया, यू नो. सी पीपल थिंक कि फंगल इन्फेक्शन हैपेंस ओनली इन द लो सोशियो इकोनॉमिक. ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है. सो बेसिकली वो जो खींचते हैं, एक तो वो ह्यूमिड एरिया एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स. So with every menstrual cycle, the bleeding adds on to the food to the fungus. So one cycle goes and your fungus doubles up. हमने कभी कभी ऐसे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं हॉस्टल्स के मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते ब्लीड हो रहा होता है स्किन, यू नो, दे जस्ट डोंट कम अप. सो इट इज ड्यूटी ऑफ मदर्स और फादर्स टू, जो छोटे बच्चे हैं उनको, यू नो, टू टीच देम हाइजीन, अवॉइड टाइट क्लोथ्स, अवॉइड शेयरिंग क्लोथ्स, बहुत ज्यादा टाइट जीन्स और सिंथेटिक कपड़े नहीं. थोड़ा भी बच्चे ईच स्क्रैच कर रहे हैं तो यू विल हैव टू बिकॉज कम टू द डॉक्टर, बिकॉज जो उसका साइड इफेक्ट्स आते हैं ना, बिकिनी लाइन के टीनिया क्रूरिस बोलते हैं हम लोग, वो फिर बहुत लॉन्ग टर्म रहता है, उसको रिपेयर होने में बहुत टाइम लग जाता है एंड इट इज साइकोलॉजिकली इंपैक्टिंग आल्सो. राइट, तो इसीलिए बिल्कुल वक्त नहीं जाया करना है. आप ही को तकलीफ ज्यादा होगी, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा यू नो सीवियर हो सकते हैं. प्लीज गो टू द डॉक्टर, टॉक टू द डॉक्टर. Okay, Sumit Sen is asking, can fungal infection affect internal organ? मेरे ख्याल से आज हम superficial fungal infection पर बात कर रहे हैं, उसका internal organ से ये वाला जो फंगस होता है जो बॉडी पे रहता है, दैट इज अ डिफरेंट वेरिएंट. जो कोविड में हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन में चला गया, लंग्स में चला गया, दैट्स अ डिफरेंट वेरिएंट. बट अ हेल्दी इंडिविजुअल विल नॉट गेट इन जनरल. ये वेरिएंट्स दोनों अलग होते हैं, अलग अलग स्पीशीज वेरिएंट्स. राइट. अमित जाटव का सवाल है, कैन पेट गिव
human fungal infection? uh, Depends upon the pet, which pet it is. So generally same. पेट्स को जो लोग ऑफ कोर्स पेट का हाइजीन एंड खुद का हाइजीन मेंटेन करना होता है, बट फंगल इन्फेक्शंस जनरली इतना स्प्रेड नहीं करता है पेट से ह्यूमंस पे. टिक्स और वो जो जू टाइप के जो टिक्स जो हम बोलते हैं, वो टाइप ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड करते हैं पेट्स से फंगल ह्यूमंस को. राइट. चिराग पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन इन दीज ह्यूमिड कंडीशंस? इन डीप ह्यूमिड कंडीशंस. दीज ह्यूमिड कंडीशंस, हालांकि इस पे हमने बात की है कि अभी जिस तरह का मौसम है उसमें किस तरह से हम, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर, दोबारा आप बताना चाहोगे? Bath twice a day with don't use a very harsh soap, with a gentle soap twice a day bath. क्लेंस एकदम अच्छे से करके. यू एंड मेन के लिए जनरली मैं बॉडी वॉश ज्यादा सजेस्ट करती हूँ बिकॉज दे हैव मोर हेयर. सो ड्राई योर बॉडी कंप्लीटली, मॉइस्चराइज योर फोल्ड्स. एंड अगर आपका वर्क उस टाइप का है कि आपको बहुत स्वेटिंग हो रहा है, तो wear boxers instead of tight undergarments, and wear very loose cotton clothes. And if बहुत monsoonish है तो iron your clothes. So these all will kill the fungal more easier. क्या अगर जिसको फंगल इन्फेक्शन है वो स्विमिंग पूल जा सकता है या जिम जा सकता है, इवन इफ ही और शी इज टेकिंग ट्रीटमेंट? स्विमिंग पूल आई जनरली वुड सजेस्ट कि नहीं जाइए, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को होगा. जिम में जनरली हम लोग इतना कांटेक्ट, बिकॉज खाली वो इंस्ट्रूमेंट्स टच हो रहे हैं, तो जनरली हैंड फंगस होगा तो ही वो स्प्रेड होगा. सो जिमिंग इज स्टिल ओके. स्विमिंग या एज अ सिटीजन ऑफ गुड सिटीजन यू शुड नॉट डू इट. आपको हो गया तब दूसरे को तो ना हो एटलीस्ट. सो दैट वाइज स्विमिंग या वाटर वो अवॉइड करना चाहिए. और आपको भी फैलेगा बिकॉज वो कंटिन्यूस वाटर कांटेक्ट में आएगा तो वो फ्लेयर अप होगा. राइट. डॉक्टर, अब एक तरह से हम जो है इस पूरे सेशन के कंक्लूडिंग पॉइंट पे आ रहे हैं. कोई ऐसी बात फंगल इन्फेक्शन को लेकर जो हमने नहीं की हो या जो छूट गई हो, या कोई मैसेज, कोई टेक होम मैसेज जो आप हमारे व्यूअर को देना चाहें? आई थिंक हमने वो काफी टाइम बोलिए कि कंप्लीट योर कोर्स, टेक योर मेड्स विद अ डॉक्टर ओनली, विद अ डर्मेट ओनली. डोंट मिक्स एंड डोंट टेक डायरेक्टली फ्रॉम द केमिस्ट. वो सब ध्यान रखना है. डोंट शेयर क्लोथ्स. ट्राई एंड डू मेंटेन हाइजीन एज मच एज पॉसिबल. एंड इफ देर इज अ रिलैप्स, लाइक मैं मेरे पेशेंट्स को ये समझाती हूँ कि जैसे मैडम पिछले सीजन में हुआ था, अब क्यों हो गया. इट्स लाइक कोल्ड एंड कफ, यू कैन जस्ट कैच इट अगेन. So don't blame the doctor कि मैंने तो ट्रीटमेंट किया था ये वापस हो गया. It's a fungal infection. You can get it anytime. And get yourself blood reports checked. If your immunity is poor, if your skin barriers are poor, if you're a diabetic, you have thyroid, so you just take proper precautions so you don't keep on getting the infections again and again. बिल्कुल, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ओवरऑल हेल्थ का ध्यान, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. हाइजीन मेंटेन करना तो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली इस समय, क्योंकि जैसा हमने कहा ना, ब्रेड से लेके दीवारों तक सब पे फंगस लगता है. फिर हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें अपने आप को बचाना है. सबसे पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो डॉक्टर ने बताए, उन्हें फॉलो करना है. फिर भी अगर हो जाता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है. कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम, योर मनी, योर एनर्जी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर हेल्थ ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स. गो टू द करेक्ट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. और इलाज पूरा करना है, वो भी उतना ही जरूरी है. फिर से जस्ट इन केस हो जाता है तो वापस डॉक्टर को दिखाइए. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर प्रियंका सतारिया. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और बहुत आसान शब्दों में आपने हम सबको बताया कि किस तरह से हम बच सकते हैं, और फिर भी अगर हो जाए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो थैंक यू अगेन फॉर मेकिंग दिस होल सेशन सो इन्फॉर्मेटिव. Thank you so much. Thank you, Doctor. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great evening ahead. Goodbye.